बट जो भी चुनो, जो भी करो, दिल से करो, and I am sure with such a wonderful institution that you are attached with, you will end up doing well in your life. All the best to you. And subject is limitation that केवल maths है, commerce है, they can also go for banking. You can. Yeah. In fact, banking is one profile which can absorb all profiles. हमें कोई graduation specific BSc या commerce या arts नहीं चाहिए. We will absorb anybody. We just need the right attitude. अगर बंदे में ज़ील है काम करने की, बंदी में अगर attitude अच्छा है, अगर मेहनती है, और सबसे बड़ी बात बैंकिंग के लिए अगर honest है, हमारे लिए इतनी qualification काफी होती है. Of course, you should not be the bottom performer of your class. Top 10-15 आओगे तो अच्छा लगेगा. लेकिन अगर नहीं भी हो, so don't worry. बैंकिंग के लिए, बैंकिंग में सबके डोर्स खुले हैं. सिर्फ honesty जरूरी है बैंकिंग में काम करने के लिए. सिर्फ honesty. Right? Just to share, we have colleagues standing over here. Out of these 3 people, Neha is a graduate and Akshay is an engineer. So you can see the diversity in academic background. So it's not like that. It's graduation, post graduation, anything. So what Rashi has mentioned, आपका rightly pointed out. कहाँ जाएगा ये आपको शुरू में पता नहीं चलेगा. I was signed MBA in finance, and I think it's okay. There I'm audible. And then finally I ended up doing a banking job. So guys, career कहाँ जाएगा? कुछ destiny भी होती है, कुछ आपकी capability होती है, कुछ आपका interest होता है, कुछ दूसरे देखते हैं आपके अंदर कि आप ये अच्छा कर सकते हो और आप निकल सकते हो. I said by Amish absolutely correctly. Akshay is an engineer, Neha is a graduate, and they are both doing very well with us. So just an example कि कोई भी कहीं भी पहुंच सकता है, सिर्फ आपके ऊपर है. And we have a lot of women, men both in our organizations who are not very good students when they were in their respective colleges. Not poor students also, but they were average students. But they have done very well in their life because जब career start हुआ, so they gave 100% to that career, and that is why they are where they are. My seniors, my super seniors, a lot of women, a lot of men in that, right? So it's not restrictive at all. Another. Sometimes people are afraid. So we have conducted workshops earlier, and one thing was we are afraid of banking as a sector. So there are some people who from this very place had said, banks is not meant for women. I say, yeah. So they did not look at banking as a career. Then I said, look at all the banks. We just had this presentation and said that look at the biggest private sector bank, and they're all headed by women. And as we pointed out, that in Yes Bank the men report to women. Arnab, not even the biggest private sector bank. Anybody knows? कोई यहाँ पे group में Anybody raise your hands, guys? Raise your hand. You might have seen the presentation. Yes. SBI की chairman का नाम Arundhati. Absolutely, she's a woman. Chandra Kochar. Shikha Sharma. Correct. One chocolate to that person. Absolutely correct. So we have enough and many women examples who are banking, guys, is a very safe career for women. You have Neha as an example. I am standing in front of you. I have at least 8 bosses of mine who are women, right? I have colleagues who are women. So banking is a very, very safe field for women. अगर आपको लोगों से बात करना मिलना अच्छा लगता है, banking is a very good job to be at. And you can manage both your family and your office with that. That's the best part about banking. And in any case, girls are better in that. Girls are better in that. Yeah. Okay guys, couple of things. हम लोग के एक occasion Women's Day की भी है. 8th March was Women's Day. Save it as International Women's Day. And आप लोगों से जानना था कि आप लोगों का Women's Day के बारे में क्या है. मैंने ऐसे Women's Day के बारे में कि अगर अगर महिलाओं को आगे बढ़ना है तो उनको हमें शक्तियाँ देनी पड़ेगी. तो आपके लिए वो कौन सी शक्ति होगी जो आपको अगर मिलती है तो आप आगे बढ़ के अच्छा काम कर सकते हैं. यही हमने एक छोटा सा क्वेश्चन बनाया है. आप लोग मुझे देंगे, आप लोग उसमें अपना नाम, फोन नंबर, जिसका अच्छा मैसेज होगा उस सबको इसको एक रिवॉर्ड भी मिलेगा बाद में. Select all of those entries and बाद में रिवॉर्ड मिलेगा. So I will ask Neha to circulate it. Please start with the faculty members. From Political Science Honors. Okay. मैम Political Science डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं ना वो क्या एलिजिबल है बैंक के लिए?
बिल्कुल एलिजिबल है। हमें बैंकिंग में जॉब अप्लाई करने के लिए जस्ट 1 सेकंड, just give me 1 minute यार। तो श्रीति इज आस्किंग कि अगर मैं पॉल साइंस की स्टूडेंट हूँ क्या मैं बैंकिंग में अप्लाई कर सकती हूँ? मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ। हमें सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए होती है पर्टिकुलर परसेंटेज के ऊपर। अगर आप उसके ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो दैट इज एन एडेड एडवांटेज, बट फ्रॉम आवर साइड वी आर ओके इवन हायरिंग एनी स्ट्रीम ग्रेजुएट। We don't have a percentage criteria, but of course 50% के ऊपर होगा तो it's better. Ma'am, I want to know, ma'am, how can we eligible? एलिजिबिलिटी के लिए कुछ नहीं है श्रीजी, आप एक बार ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए अपनी, उसके बाद एक पोस्ट ग्रेजुएशन में एनरोल करिए, वो कंप्लीट करिए। उसके बाद हम लोग के वेरियस टाई अप्स हैं। फॉर एग्जांपल IFBI के साथ हमारा टाई अप है, टाइम्स प्रो के साथ टाई अप है। आप इनमें किसी भी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। ये 3 to 6 months to 1 year के कोर्सेज हैं, जहाँ पे हम हर साल फ्रीक्वेंटली इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं कैंडिडेट्स के लिए। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अक्षय, I think he was just here. He's Akshay, raise your hand. Okay, Akshay is a graduate, and after that he is an engineer, and then after that he signed up on Times Pro. So when we went to his college, we did an interview and we hired him. That's how you can also apply. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, Shiji. Thank you for your question. और कोई सवाल किसी का? Anybody else? Okay. अच्छा, okay. आ जाओ आप इधर आओ। Yeah, what's your name? हिंदी ऑनर्स। हमें ये पूछना है कि बैंक अगर सुना है तो पेरेंट्स से कि बैंक एजुकेशन के भी लोन देता है, तो अगर हमें एजुकेशन लोन लेना हो तो हम कैसे ले सकते हैं? एजुकेशन लोन मिलता है। इनफैक्ट बहुत सारे बैंक्स इसको ऑफर कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर रेट होता है, उसमें कुछ कॉलेजेस रजिस्टर्ड होते हैं, राइट? गाइस आई रिक्वेस्ट कि अगर आप सुन लो, शायद आपको भी कहीं फायदामंद हो जाए इससे। सो नेहा इज आस्किंग मी, Radhika is asking me, I'm a little bad at this, sorry यार। So Radhika is asking me that अगर एजुकेशन लोन चाहिए हमें आगे की फर्दर स्टडीज के लिए तो बैंक्स देते हैं या नहीं देते? बैंक्स बिल्कुल देते हैं। उसमें कुछ कॉलेजेस बैंक्स में रजिस्टर्ड होते हैं, और उन कॉलेजेस में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप लोन एप्लीकेशन बैंक में दे सकते हो। आपके पेरेंट्स की एलिजिबिलिटी के बेसिस पे लोन मिलता है। जब आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको हर मंथ अपने सैलरी का एक कंट्रीब्यूशन बैंक को सबमिट करना होता है। इसका पूरा प्रोसेस हर बैंक की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। बैंक्स की सबकी अपनी वेबसाइट्स हैं, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। आप अपने जिस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो राधिका, वहां जाके भी आप देख सकते हो कि वो किस किस बैंक से टाई अप रखते हैं, राइट? ओके। हिंदी ऑनर्स। What's your name again? नेहा कौशिक। Neha. So Neha is from Hindi honors. Yes, Neha. What's your question? मोस्टली जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, देन उनको लोन चाहिए होता है। लेकिन अगर बैंक की डिमांड ये होती है कि आपको कोई चीज़ का प्रूफ दिखाना होगा कि आपको लोन किस लिए चाहिए, बट ऐसा नहीं हो। अगर उनके पास तो इनकम सोर्सेज भी इतने कम होते हैं, उनकी इनकम भी इतनी कम होती है, उन्हें लोन भी चाहिए होता है, तो वो क्या रखेंगे? नेहा, आपने कभी किसी बैंक में एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया है? नहीं। ओके, सो नेहा का क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्या क्वेश्चन है? कोई पीछे से बताएगा मुझे? क्या क्वेश्चन है नेहा का? मैम, तो गरीब लोग हैं, वो लोन लेना चाहते हैं, बट उनके पास कुछ रखने वाले गिरवी रखने वाले कुछ होता ही नहीं है। परफेक्ट। सो नेहा, एजुकेशन लोन के लिए कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है, पहली बात। एजुकेशन के लिए नहीं, उन लोगों के लिए पूछा। लोन के लिए देखो, अगर आप कोई इसके अलावा कोई भी लोन अगर आप इसके अलावा लेते हो, हम अलग अलग दो बातें कर रहे हैं। एक बात है एजुकेशन लोन के बारे में, और दूसरी है कोई और लोन के बारे में। कोई और लोन जब भी आप लोगे तो जो भी आपको कर्ज दे रहा है, लोन इज अ लोन, राइट? वो इंश्योर करेगा। आप भी अपने फ्रेंड को अगर 2 रुपए देते हो, लेट्स से 2 रुपए तो गलत हो गया एग्जांपल आज के जमाने के हिसाब से। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपकी बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ। Shalini. Okay, so let's take Shalini is a very good friend of Neha, and Neha Shalini को 200 rupees उधार देती है, right? नेहा शालिनी को उधार तभी देगी जब उसको भरोसा है कि शालिनी मुझे 1 महीने के अंदर वो पैसा किसी भी तरीके से वापस कर देगी। यस या नो? यस या नो? नेहा के पास वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि शालिनी 2 महीने में वापस करेगी पैसा? सिर्फ एक तरीके से आएगा कि शालिनी का, क्योंकि नेहा और शालिनी दोनों भी अर्न नहीं कर रहे हैं, दोनों भी पेरेंट्स की इनकम पे डिपेंडेंट है, कि नेहा के पेरेंट्स में इतनी काबिलियत है
कि वो 1 महीने के बाद शालिनी के पेरेंट्स में इतनी काबिलियत है कि वो शालिनी को 200 रुपए वापस करेंगे और वो नेहा को देंगे। मानते हो मेरी बात? अगर नेहा को पता होगा कि शालिनी के पास 200 रुपए नहीं है, वो मुझे आगे कभी वापस नहीं कर पाएगी, आप लेंड करोगे? आप दोगे उसको? लैंड दोस्ती की होती है, लेकिन जब आप बैंक से लोन ले रहे हो तो बैंक आपका दोस्त है? नहीं, बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है और आप एक इंडिविजुअल की तरह अप्लाई करते हो। ये बात डिफरेंस समझो। कोई भी दो ऑर्गेनाइजेशंस किसी कॉन्ट्रैक्ट में तब आती हैं। कोई लॉ का स्टूडेंट है या कॉन्ट्रैक्ट लॉ किसी ने पढ़ा है? लॉ का स्टूडेंट है कोई? लॉ आई थिंक इज नॉट देयर मैम, राइट? कॉन्ट्रैक्ट, कॉमर्स गाइस विल नो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी पार्टीज, दो पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट में तब बनेगी जब दोनों के लिए फायदेमंद होगा। सिर्फ अगर एक के लिए फायदेमंद है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक तरफा होता है, राइट? सो इसीलिए जरूरी है कि बैंक को ये देखना जरूरी है कि आप लोन रीपे करने की कैपेसिटी रखते हो नहीं करते हो। अगर आपके पास फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, इनकम लाइन नहीं है, कोई कमाने का जरिया नहीं है, तो कैसे आप लोन रीपे करोगे? इसीलिए एजुकेशन लोन में हमें कोई प्रॉपर्टी रखने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज पता है आप कमाओगे, आपकी स्किल के ऊपर हम वो चांस देते हैं, राइट? आप पे लोन देते हैं, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी एजुकेशन पे वो लोन देते हैं। करियर को लेकर है कि मोस्टली सबके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होता है और एक वीक पॉइंट होता है, सबके अंदर होता है। और इवन कई बच्चों का लो पॉइंट ये होता है कि वो अगर एक सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो एक में वीक है। और मोस्टली कई सारे बच्चे या इवन कई सारे लोग होते हैं जो इंग्लिश में बहुत लो हो जाते हैं और उनका हिंदी अच्छा होता है, बट मोस्टली अगर हम करियर के लिए आगे ज़्यादा अप्लाई करते हैं, अरे रुक जाइए ये बोलती हैं पीछे भी आ जाइए। इंग्लिश अच्छा आना चाहिए, आपका अच्छा बात करना, आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। बाय। ओके, पहले तो मैं मिथ क्लियर करना चाहती हूँ कि कंपनीज कहती हैं कि आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। ये डिपेंड करता है किस तरह की जॉब में अप्लाई करते हैं, किस तरह के क्लाइंटेल से आप डील कर रहे हैं। अगर आप एक ऐसी कंपनी में डील कर रहे हैं जो ओवरसीज, लेट्स से एक ओवरसीज कॉल सेंटर चलाती है, राइट? और आपको फोन पे कुछ सेलिंग करनी है, इन विच केस अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो आप अपने यूएस के, यूके के क्लाइंट से कैसे बात करोगे? लेकिन लेट्स कम टू अ सिचुएशन, या आप किसी होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहाँ पे सारे हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स आते हैं, आपको उनकी भाषा में बात करनी है। अगर वो इंग्लिश में करें तो आपको इंग्लिश में करना जरूरी है, उसके लिए सीखना भी जरूरी है। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग की बात करो तो हम लोग बहुत क्लियर चीज बोलते हैं बैंकिंग के अंदर, जिस भाषा में कस्टमर को आपकी बात समझ में आए आपको उस भाषा में बात करना है। हिंदी में समझ में आए हिंदी में करिए, तेलुगु में समझ में आए तेलुगु में करिए, पंजाबी में समझ में आए पंजाबी में करिए। जो कस्टमर समझे वो आपकी भाषा। आज मैंने आपसे किस भाषा में बात करी है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना नेहा कि इंडिया में नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि अब कोई भी कंट्री, कोई भी कंपनी, कोई भी कॉलेज सिर्फ एक कंट्री के दायरे में रह के नहीं रह सकता। ओके, लेट मी आस्क अ क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन गाइस। में कभी कोई कम नहीं होता है, हमेशा ऐड ही होता है। सो मैं सजेस्ट करूंगी सीखो, लेकिन वो आपके करियर के बीच में कभी बैरियर नहीं बनना चाहिए। You know why Indians are successful outside the country? You know, in every part of the world, Indians are there. Simple reason, they know English. अच्छा, एक लास्ट, I'll give you one last example. I'm sorry, I'll cut you. I just thought I remembered. कोई कह सकता है कि मैंने 9th तक हिंदी स्टैंडर्ड में पढ़ाई करी है? कोई कह सकता है? नहीं ना? मेरे को सिर्फ 3 साल लगे सीखने में, लेकिन 3 साल मैंने सीख लिया। शुरू में पहले तक बहुत परेशानी हुई, लेकिन मैंने भूगोल, शास्त्र सब हिंदी में पढ़ा है, इतिहास, भूगोल सब हिंदी में पढ़ा है, मैथ्स, गणित पूरी हिंदी में पढ़ी है 9th तक। मैं खुद एक हिंदी मीडियम की पास आउट। मैं भी 10th तक रहा हूँ। आप सोच कि कोई कह सकता है कि हिंदी मीडियम पास आउट? अगर ऐसा कुछ नहीं है, सोच और सीखना आपके दिमाग में बहुत होता है। अगर आप सोचना चाहो, सीखना चाहो तो आप सीख सकते हो। Oh yeah, please. अपनी कोई परेशानी आती है आपको Listen what she is saying. She has one question. मैम, मैं BA प्रोग्राम 3rd ईयर से हूँ। नाम क्या है आपका? ज़ैनब। ओके मैम, अभी हमने अंतरदानी में एक स्टॉल लगाया था, सर ने भी उसका जिक्र किया, तो हम लोग एज ए इंडस्ट्री उसे आगे मतलब बढ़ाना चाहते हैं।
We are I'll just explain the question. So they have ideas in food technology and things like that. So these are ideas. So how do they scale it up? That's the question. Financing वगैरह right? So micro How blending. We do have students can benefit? Okay, Zainab, हर टेक्नोलॉजी में ओके चाहे आप सोलर सेल डेवलपमेंट ले लो या फूड प्रोसेसिंग ले लो एनजीओज खुले हुए हैं ओके ये एनजीओज क्या करते हैं ये ऐसे आइडियाज को एनकरेज करते हैं सो अगर आपको आपका देखो आपका 2-3 स्टेप चलेंगे पहले आपको ये आइडिया कन्विंस करना पड़ेगा कि ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है अगर आपको लगता है आप कन्विंस्ड हो तो आपको एक एनजीओ के पास लेके जाना पड़ेगा जो इस तरह के आइडियाज प्रमोट करने के लिए फंडिंग अरेंज करते हैं राइट